اللہ نے ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک یہ کان اور آنکھیں اور دل تینوں چیزوں کے تعلق سے پوچھا جائے گا، بندوں کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ خداوند قدوس ان اعضاء و جوارح کا صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح استعمال اگر اس کا صحیح استعمال ہوتا تو روڈ پہ ادھر جو بھیڑ لگی ہے نا عورتوں کی مردوں کی وہ بات نہ ہوتی، یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ میں کہنا نہیں چاہتا تھا، بہت خراب بات ہے، کتنی خراب بات ہے۔ سید الکونین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مرد کسی عورت کی طرف دیکھے، جو عورت کسی مرد کی طرف دیکھے تو آنکھ کی زنا کا گناہ پڑ جائے گا، وہاں کوئی حج نہیں ہو رہا ہے۔ خداوند قدوس صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایسے اعمال خسارہ میں ڈالتے ہیں، یہ اعضاء و جوارح ہمارے آپ کے پاس امانت کے طور پر اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ارے بولو پوچھو گی نہیں بھیا؟ مشورہ ہے بھیا، یہاں سے چلے جاؤ ادھر جا کے بیٹھو، یہ بند ہو جائے گا تب یہ تقریر کر لیں گے، جاؤ ادھر بات ہو جاؤ۔ چھوڑ دیا نا آواز جائے چاہے جہنم جائے، اس سے نہیں مطلب، آپ اس میں چھڑ چھاڑ کرو۔ برباد گلستان کی خاطر ایک ہے کافی تین آنکھیں بات کرتے ہیں، درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کوئی کھیل کا میدان تھوڑی ہے، نعت پڑھنے لگے چاہے کوئی بیٹھے چاہے بھاگ جائے چاہے سو جائے اس میں فرق نہیں پڑے، تقریر میں فرق پڑتا ہے۔ درود پاک ایک بار پھر پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عرض کر رہا تھا ان آنکھ اور کان اور دل تینوں کے بارے میں اللہ کی عدالت میں پوچھا جائے گا، بندوں کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ارے بولو یہ تو کر سکتے کہ آنکھوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، کانوں کی حفاظت تو کر ہی سکتے ہیں، تو یہ ہماری اپنی جاگیر نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی یہ امانتیں ہیں شمع رسالت کے پروانوں۔ خداوند قدوس صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آنکھ تو اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک مرتبہ سید الکونین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر کیا۔ میرے آقا نے فرمایا اس عابد نے دعا مانگی پروردگار مجھے جب موت آئے تو سجدے کی حالت میں آئے۔ اس نے دعا مانگی، اس عبادت گزار نے بنی اسرائیل کا بہت بڑا عابد تھا، اس نے دعا مانگی پروردگار جب ہماری موت آئے تو سجدے کی حالت میں آئے۔ چنانچہ اس کی دعا قبول ہو گئی، 500 سال اس نے اللہ کی عبادت کی، اور عبادت کرنے کے بعد یہ کہا پروردگار عبادت تو اتنی لمبی لیکن جب ہماری موت آئے تو سجدے کی حالت میں آئے۔ خداوند قدوس ہم تمام لوگوں کو صحیح نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سجدے زیادہ کریں گے تب اس کی امید ہے نا کہ سجدے کی حالت میں موت آئے، بولو ہے کہ نہیں؟ چنانچہ اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ دعا مانگنا چاہیے کہ جو چاہے مانگ خدا سے مگر خدا کے لیے، جو چاہے مانگ خدا سے مگر خدا کے لیے، خلوص دل کی ضرورت ہے ہر دعا کے لیے، خلوص دل کی ضرورت ہے ہر دعا کے لیے۔ اس عابد کی دعا قبول ہو گئی، سجدے کی حالت میں موت آئی، اللہ کی عدالت میں فیصلہ چلا گیا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے کو میرے فضل و کرم کی بنیاد پر جنت میں داخل کر دو۔ بندہ بولا پروردگار ہم نے جو 500 سال عبادت کی اس کا ثواب کہاں گیا؟ تھوڑا سا اور آگے کو یہ بچے ہیں بیچارے، ان کے لائق تقریر نہیں ہے، تقریر کے لیے کم سے کم 40 سال کی عمر ہونی چاہیے۔ آپ تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤ۔ سارا سفر میں تو نہیں تھکے ہی آ کر کے مفتی صاحب تھک گئے، پسینہ پسینہ ہو گئے سمجھاتے سمجھاتے کہ پیچھے سے آگے لائے اور ہم ترتیب بنانے تھکے جائیں، کچھ تو یہ کچھ وہ، توبہ ہے یار، سمجھ گئے نہیں؟
कहा परवरदिगार अभी तेरे फजलो करम की बुनियाद पर जन्नत में दाखिला हो, और जो मैंने 500 साल इबादत की वो ईमान वालों याद रखो, अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं, अगर वो हिसाब कर ले तो जवाब देते नहीं बनेगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, गिन न पाओगे, शुमार न कर पाओगे। बंदा बोला परवरदिगार मैंने जो 500 साल इबादत की उसका सवाब कहाँ गया, अभी तेरे फजलो करम की बुनियाद पर जन्नत में दाखिला हो। कितनी ज्यादा इबादत की होगी, यानी 500 साल तक एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की हुक्म अदूली और नाफरमानी नहीं की। बस हद हो गई, अब रहने दो भाई, बहुत हो गया। कोई सवाब इसमें है नहीं, रमजान का महीना तो है नहीं दिन वाला। ये हमारे यहाँ लखनऊ में एक साहब है, हमारे महल्ले की मस्जिद जो हमारे घर से मिली हुई मस्जिद उस्माने गनी, तो बेचारे बहुत हजरत हैं। वो जब मस्जिद में दाखिल हो गए अस्सलाम वालेकुम बड़ी जोर से, मैंने कहा सुनो हजरत सवाब न कमाओ, इसमें और जुर्म हो रहा है। मैंने कहा सलाम में भी, तो हमने कहा मामला जरा उल्टा है। कहा कैसे? मैंने कहा जब आप जोर का सलाम करोगे जो सुन्नतें पढ़ रहे हैं उनकी नमाजों में खलल वाक़ होगा, आप इसको पहचान में चुपके से सलाम कर लीजिए, मस्जिद में जोर का सलाम। एक आदमी ने सुना सुभान अल्लाह पढ़ना बहुत बड़ा सवाब, सुन लिया सवाब बहुत ज्यादा। एक साहब ने कहा भाई साहब मेरे बेटे का इंतकाल हो गया। कहा सुभान अल्लाह, हमारा चाटा पागल कहेगा, अब हमारे बेटे का इंतकाल हो सुभान अल्लाह पढ़ता है। तो कहा पढ़ना क्या चाहिए? कहा पढ़ लेना चाहिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वाली दुआ उसको याद हो गया, अब ये पढ़ने लगा। दूसरे मौका पर एक साहब ने खबर दी कि भाई साहब हमारे यहाँ भी लड़के की पैदाइश हुई है, तो ये वाली दुआ उठा के पढ़। कौन सी? उसने भी जोर से तमाचा मारा पागल कहीं का, हमारे बेटे की खुशी पे तुझको कोई तकलीफ नहीं मिलना पड़ रहा है। सवाब दोनों में है। ये वाली बात कोई नुकसान हो जाए, कोई इंतकाल हो जाए, कोई घाटा हो जाए, कोई चीज गुम हो जाए तब पढ़ी जाती है। और सुभान अल्लाह हर खुशी में तब समझ में सवाब है दोनों में, लेकिन उसका मौका अलग अलग है। तो चाय वाला भी उधर है मामला, इसको आप याद रखिएगा। मौके से सलाम, मौके से सब है। अल्लाह सही समझ अता फरमाए। उसने 500 साल तक इबादत की, एक लम्हा के बराबर भी गाफिल नहीं रहा। और आजकल आदत है अजानें होती रहती हैं और लोग चुपके मारे बैठे रहते हैं, बाद में कहते हैं हाफिज जाओ टाइम हो गया, हाजी साहब जाओ टाइम हो गया। इनको पता चला छूट है, अरे नमाज तो सबके लिए है। इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, अपने वक्त मुअय्यना पर सारे ईमान वालों पर नमाज फर्ज है। अरे बोलो है कि नहीं? बेशक नमाज फर्ज है तमाम ईमान वालों पर, अपने वक्त के अंदर ही फर्ज है। वक्त बेवक्त हो जाए तो ऐसा नहीं है। अल्लाह सही नमाजें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। नमाज इतनी अहम चीज है कि रोजों का ऐलान नहीं होता, हज का ऐलान नहीं होता। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर ऐलान किसी का नहीं। अगर ऐलान होता है तो नमाज ही का होता है। किसका ऐलान? नमाज का। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। 2 बार उसकी बड़ाई का ऐलान है, अभी बस नहीं है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह ही सबसे बड़ा। अरे बोलो 4 बार अल्लाह की बड़ाई का ऐलान है कि नहीं? वरना एक बार में बात हो जाती अल्लाह सबसे बड़ा, ठीक है कोई बात नहीं। 4 बार अल्लाह की बड़ाई का ऐलान है। और उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक
कोई भी ऐसा नहीं जिसके सामने गर्दन झुका दी जाए। सर झुकाने के लायक सिर्फ अल्लाह की जात है कि उसी के सामने अपने सर को झुकाया जाए। अरे बोलो है कि नहीं? कान में उंगली डाले बैठे, अब तो वो वाला चला है ना। पहले तो ऐसे लोग बात करते थे, अब वो कोई चीज है जो कानों में उसको ठूस लेते हैं और उसके बाद बाहर की आवाज नहीं सुनते हैं। क्या बोलते हैं भैया उसको? लंबी लंबी होती है, हम नहीं जानते हैं। इतना जानते हैं कि गाड़ी हारन देती, नहीं सुना तो टक्कर मार के चली जाते, बाद में उनको घर वाले उठा लाते हैं। कोई जब फोन करता है क्या बोलते हैं उसको, आप समझ वो का तौबा है अल्लाह। अल्लाह सही समझ अता फरमाए। अल्लाह की मुनादी की आवाज नहीं सुनी, क्या होगा दोस्तों? क़यामत के मैदान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आज हम मुजरिमों को जहन्नम की तरफ भूखा और प्यासा हाँक देंगे। बेनमाजी भी मुजरिम है, अइम्मा फरमाते हैं, बड़े औलिया अल्लाह फरमाते हैं बेनमाजी भी मुजरिम है। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। आज हम मुजरिमों को जहन्नम की तरफ भूखा और प्यासा हाँकेंगे। अल्लाह को मुजरिम ना बनाए, नमाजों की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। जहन्नमी जहन्नम में भूखा और प्यासा होगा, पानी मांगेगा, अलातश अलातश, प्यास लगी, पीने के लिए पानी न होगा, खाने के लिए खाना नहीं होगा। हजरत फरमाते इमाम एक बहुत बड़े इमाम फरमाते हैं कि वो जहन्नमी चीखता रहेगा, चिल्लाता रहेगा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब जहन्नमी चीखेगा चिल्लाएगा, 1000 साल गुजर जाएंगे। कितने दिन? 1000 साल गुजर जाएंगे। इल्ला हमीमन व क़स्साक़न जज़ाअन विफ़ाक़ा। उसको पीने के लिए खौलता हुआ पानी, और वो पानी नहीं होगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जहन्नम के गड्ढे में, उसके गड्ढे में, नशेब में और उसकी खलार में खून और मवाद और जहन्नमियों का पीप भरा हुआ होगा, जो आग से भी ज्यादा गर्म होगा। वो पानी जबरन होठों पर लगाया जाएगा। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो पानी मुंह के अंदर दाखिल होगा, ऊपर की होठ सिकुड़ कर ऊपर चली जाएगी, नीचे की नीचे आ जाएगी। जबरन वो पानी पेट के अंदर दाखिल होकर के अतड़ियों को नीचे के रास्ते से काट कर गिरा देगा। इतनी बड़ी सख्त सजा है। खुदावंद कुद्दूस हमें मुजरिम ना बनाए, अपना फरमा बरदार बंदा बनाए। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सही समझ अता फरमाए। जिंदगी तो दी हुई उसी की है कि मेरी जिंदगी तेरी बंदगी, मेरी जिंदगी तेरी बंदगी। परवरदिगार मेरी जिंदगी तेरी बंदगी, तेरी बंदगी मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी तेरी बंदगी, तेरी बंदगी मेरी जिंदगी। वो जो गफलतों में गुजर गई, वो जो गफलतों में गुजर गई। मेरी जानो तन पे वबाल है, वो जो गफलतों में गुजर गई। अल्लाह सही तरह तैयारी की तौफीक अता फरमाए। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। तो जरा हाथ उठा दो आप। अल्लाह सबको कबूल फरमा ले और अपना फरमा बरदार बंदा बना ले। वो बनी इस्राइल का आगे कहने लगा, परवरदिगार मैंने 500 साल इबादत की, उसका सवाब कहाँ गया? अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदे को मेरे फजल व करम की बुनियाद पर जन्नत में दाखिल करो। हर आदमी के पीछे 2 फरिश्ते लगे हुए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, किरामन कातिबीना यालमूना मा तफअलून। दोनों फरिश्ते दाईं तरफ वाला नेकियां लिखेगा, इसका रजिस्टर अलग है। बाईं तरफ वाला बुराइयां लिखेगा, उसका रजिस्टर अलग है। कुर्बान जाऊं समय रिसालत के परवानों, अल्लाह का कितना करम और एहसान है। कोई आदमी एक नेकी करेगा तो दाएं तरफ वाला फरिश्ता उसके 10 नेकियां लिखेगा। उसके लिए कितनी? 10 नेकी क्या करेगा? कितनी? 1। सवाब कितना होगा? 10 गुना बढ़ा।
ذاکر صاحب اور کیسے ہوگا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اللہ نے ارشاد فرمایا جو ایک نیکی کر کے لاوے گا 10 گنا بڑھا کے عطا کروں گا۔ اللہ نے اور اللہ کی باتوں میں کوئی شک، اس پر میں ایک شعر ہمیشہ پڑھا کرتا ہوں درود پاک پڑھنے کہ کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو بات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کر کے لاوے گا اللہ 10 گنا بڑھا کے عطا فرمائے گا۔ ہر نیکی کا ثواب کتنا ہے؟ داہنے طرف والا فرشتہ جب کوئی ایک نیکی لکھے گا ثواب 10 گنا بڑھا کے لکھے گا، اور بائیں طرف والا اگر ذرا خطا ہو گئی وہ لکھنے لگا، لکھنے کی تیاری کرنے لگا، داہنے والا فرشتہ روک دے گا کہ ذرا رک جاؤ، ہو سکتا ہے کوئی نیکی کر لے یا یہ توبہ کر لے تو ابھی لکھنے سے روکے ہوئے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ بھیا کالی ٹوپی ادھر ذرا دیکھو، سننے کے لائق تو ہونے لیکن سن لو آئے ہو تو کیا بتائیں، اب آگے ہو، آگے رہنے کے لائق جو آگے والے سے پیچھے پیچھے زیادہ کہلاؤ نا، اتنا ہی بہت ہے۔ آج بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ ارے بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ تم نے سمجھو، بیٹھو آرام سے۔ داہنے طرف والا 10 نیکیاں لکھے گا، کرو گے کتنی؟ ایک بار پڑھ لیا سبحان اللہ، نیکیاں کتنی لکھے گا؟ 10۔ اللہ نے خود فرمایا ایک نیکی 10 گنا بڑھا کے لکھی جاتی ہے۔ بائیں طرف والا کسی نے کوئی خطا کر لی، کوئی گناہ ہو گیا، لکھنے لگا، لکھنے کی تیاری کرنے لگا، داہنے والا فرشتہ روک دے گا، ارے بھائی رک جاؤ ابھی نہ لکھو، ہو سکتا ہے یہ آدمی کوئی نیکی کر لے یا اس گناہ سے توبہ کر لے۔ بولو اللہ کا احسان ہے کہ نہیں؟ خدا ان قدوس سے ہی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو کس چیز نے اس مہربان پروردگار سے غفلت میں ڈالا؟ تو عرض کر رہا تھا 2 فرشتے دونوں کے الگ الگ رجسٹر ہیں۔ اللہ کی عدالت میں بندہ گیا، اللہ نے فرمایا میرے بندے کو میرے فضل و کرم کی بنیاد پر جنت میں داخل کرو۔ بندہ بول اٹھا پروردگار ہمارا نیکیوں والا رجسٹر تو بھرا پڑا ہے، گناہوں والا خالی پڑا، کوئی گناہ تو لکھا ہوا ہے نہیں، تو ہمیں ثواب کی بدولت جاننا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ والا معاملہ تو صاف ہو گیا۔ اور ذاکر صاحب سنیے، اللہ نے فرمایا یہ معاملہ تو صاف ہو گیا، گناہ کوئی بھی نہیں ہے، نیکیوں سے نیکیوں والا رجسٹر پورا بھرا پڑا ہے، لیکن ابھی تو کون سا حساب باقی ہے؟ نعمتوں والا۔ کون سا بھیا؟ ادھر گناہوں والا رجسٹر، ادھر نیکیوں والا، دونوں کی بات صاف ہو گئی۔ نیکیاں بھری پڑی ہے، گناہ ایک بھی نہیں، لیکن تیسرا رجسٹر اور باقی پڑا ہے نا، وہ رجسٹر ہے جس میں صرف نعمتیں لکھی ہوئی ہیں، نہ کوئی نیکی ہے نہ گناہ ہے، صرف اللہ کی نعمتیں لکھی ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ پھر نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ بہت لوگ کہتے ہیں ہم حساب دے لیں گے، بہت حسابی نہ بنو، حساب کوئی نہیں دے پائے گا۔ طے کرو پروردگار سے دعا مانگیں گے، پروردگار ہم گنہگار بندے تیرے سامنے منہ لانے کے لائق بھی نہیں ہیں، پروردگار اپنے فضل سے معاف فرما دے، تیرا کرم ہو جائے بعد میں۔ کہنے لگا بندہ پروردگار مجھے اپنے اعمال کے بدولت جنت چاہیے۔ اللہ نے فرمایا تو ذرا نعمتوں کا حساب دے دے۔ اب نعمتوں کی ابتدا کہاں سے ہو، کہاں سے اس کی شروعات ہو، کہاں سے حساب لیا جائے؟ ایک ہی بات آئی کہ اے میرے بندے میں نے تجھے 2 آنکھیں عطا فرمائی، ایک آنکھ کی قیمت 500 سال کی عبادت،
बनी इसराइल का जिक्र किया किसने? ताजदार मदीना इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा, अल्लाह ने इरशाद फरमा, अल्लाह ने तुझे दुआ के अता फरमाई, अलम नजअल लहू ऐनैनि व लिसानन व शफतैनि व हदैनाहु नजदैन। अल्लाह ने दुआ के अता फरमाई। और एक आंख की कीमत कितनी है भाई? 500 साल की इबादत। दूसरी आंख की कीमत 500 साल की इबादत। अभी दिल वगैरह बोले जितना कुछ है मामला ऐसा ही पड़ा हुआ, तारी आंखों की बात है ये। अरे बोलो सबके पास है कि नहीं? अरे बोलो है कि नहीं? अल्लाह आंखों की बीनाई ले ले, अंधा बना दे, क्या कर पाएंगे? बेकीमत हो जाएंगे। अरे बोलो है कि नहीं? इस कीमत को कोई चुका नहीं सकता। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह आंखें सही साली मता पर। अरे बोलो है कि नहीं? वो तो कहते हैं पुराने बहुत मालूम, उनके पास 4 गाड़ी, हमारे पास मोटरसाइकिल है पुरानी। सेहत का भी जरा हिसाब ले लो ना। जिनको आप 4 गाड़ियां बता रहे हैं उनके पास उनसे पूछो सेहत है, कहने साहब हमको बीमारी घेरे पड़े, कुछ सुकून भी कहने साहब बहुत है। जो बड़े पैमाने के लोग होते हैं, जो फसादी होते हैं, प्लान ही बनाते रहते हैं परेशान करने का, परेशान करने के प्लान बनाने में खुद ही परेशान रहते हैं। जो आदमी अल्लाह की नेमत पाए हुए है, कमाए पाए हैं, वो अल्लाह का शुक्र अदा करके अल्लाह का करीबी बंदा बन जाता है। अरे बोलो है कि नहीं? मालदारी ही सब कुछ नहीं, उसको आप याद रखिएगा, वही सब कुछ नहीं है। मैं इस पर वाकया अक्सर बयान कर देता हूँ। एक तोता था, सोने के पिंजड़ा में पला हुआ था। तोता तो जानते हरा वाला होता है ना, बहुत लोग पालते हैं, कुछ लोग मैना कहते हैं, कुछ तोता बहरहाल। सोने के पिंजड़े में मालिक ने पाल रखा था। उसको काजू भी, बादाम भी, बेमौसम फल भी, आम भी, न जाने क्या क्या उसके लिए इंतजाम करता था। एक दिन मौका मिला, चाचा मैं आंखें खोलो जरा सा, आंखें खोलते हमारी तरफ, हमको दिखाई बहुत पड़ता अल्हम्दुलिल्लाह। उम्र 55वें साल में आंखें उतनी ही भी काम कर रही है, तो आप लफड़े में ना पड़ो, बहुत मामला मुश्किल है। उस तोते को जरा मौका मिला, दरवाजा खुला मिला, बाहर निकल गया, जाके छत के ऊपर बैठ गया। मालिक ने कहा अंदर आ जाओ, कहा अंदर हम नहीं जाएंगे। कहा सोने का पिंजरा है, बेमौसम फल है, आम है, अमरूद है, फलाना ढेकाला, काजू बादाम ये हो। कहा सुनो सब तुमको मुबारक हो। कहा खैरियत? कहा हम नहीं आएंगे। अरे कहा सोने का पिंजरा है, ये बेमौसम इतनी सारी चीजें, फल वल मोल। कहा ये फल वल तो सोने पिंजरा सब तुमको मुबारक हो। बहुतों से का बड़ा बेहतरीन कोठी बंगला बनाया, बहुत बड़ा एसी वैसे लगाया, बहुत तमाम गाड़ी कर रफर, और अंदर पूछोगे ना क्या होता है, तबीयत में बहुत ही न जाने कितनी बीमारियां लादे पड़े हैं। सारा सुकून गायब है, बच्चों की तरफ से, बीवी की तरफ से, इनके तरफ से, उनके तरफ से, और कौम की तरफ से, न जाने कितने खौफ अंदर। अरे बोलो होते नहीं? तो उसने जवाब दिया, मियाँ सुनो, मिले खुशबू रोटी जो आजाद रहकर, मिले खुशबू रोटी जो आजाद रहकर, तो बेहतर है ये मुर्गो माही से बढ़कर, तो बेहतर है ये। कहा ये सोने वाला पिंजरा, फलाना ढकाना सब तुमको मुबारक हो, हमारे पास फल है, फलों को बर्बाद चाहिए, आजादी चाहिए। ये भी बहुत सेहत भी बहुत बड़ी। अरे बोलो नेमत है नहीं? आजादी भी तो नेमत है, अल्लाह ने फुर्सत दी है, अल्लाह ने मौका दिया है, ये भी तो अल्लाह की नेमत है। अरे बोलो है कि नहीं? सब वही नहीं है मालदारी ही नहीं, किसने बताया? तो अल्लाह ने फरमाया एक आंख की कीमत 500 साल की इबादत, दूसरी आंख की कीमत 500 साल की इबादत। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अलम नजअल लहू ऐनैनि व लिसानन व शफतैनि व हदैनाहु नजदैन। कहा सुनो, इस आदमी को दोजख में डाल दो, नेमतों वाला हिसाब नहीं दे पाया। बंदा रोने लगा, परवरदिगार अब हिसाब कैसे मैं दे पाऊं, जब एक आंख की कीमत ही 500 साल की इबादत है, अब हम इसके अलावा कोई नेकी भी तो नहीं रखे, 500 साल की इबादत है, बोले हम क्या कर लेंगे। आवाज आई सुनो, मेरे बंदे को मेरे फजलो करम की बुनियाद पे जन्नत में दाखिल कर दो। तो समय रिसालत के परवानों, हमारे तुम्हारे पास नेमतें बेशुमार है, अल्लाह शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और एक मैं जल्दी जल्दी नात पढ़ दूं, हजरत मौलाना जाकिर साहब की फरमाइश पर, उसके बाद
जो आयतें मैंने तिलावत की उसके ताल्लुक से बात हुई। हजरत मौलाना की ये बड़ी पसंदीदा नात है, मैंने इससे पहले जैसे भी पढ़ा था, मौलाना ने कल भी मुझसे पढ़वाया। बड़ी पुरानी नात है, बहरहाल दरूद पाक पढ़ ले, 2-4 शेर में जल्दी जल्दी समाज फरमा ले, फिर कोई बात हो। दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। नूरे इश्क़े मोहम्मद में डूबा हुआ, नूरे इश्क़े मोहम्मद में डूबा हुआ। अभी सही आवाज है, सिर्फ आप मसाला खा रहे हो, आवाज नहीं देते। इससे कई गुना अच्छा तो आदि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। नहीं, ज्यादा सही नहीं है। शुरू से पैदाइशी तो बात तब तक है। हमको जरा रुमाल दीजिए, रुमाल दीजिए जरा। अरे तो पहले बता देते ये वो मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तो बनाते चले आए हैं दुनिया को, इस मैक से आप समझ लीजिए, बनाते बनाते बाप दादा और पीछे के लोग भी बनाते रहे, लेकिन अब तक ये दुनिया बन नहीं पाई है, दुनिया अनबनी है। किसी शायर ने कहा है कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। बनने वाला कुछ है नहीं, जो हमारे बनाने के लायक है वो हम करें, हमारे बनाने के लायक आमाल है। क्या है भाई, हम अपने आमाल बना सकते। अरे बोलो, इसमें भी कोई शक है आपको? अरे भैया आपको शक लग रहा है तो हमारी तरफ देखो ना। तो हमारे लायक जो काम है वो काम हम करेंगे। सबसे पहले मैं एक बात अर्ज कर देता हूँ, हजरत की मौजूदगी में हजरत का बहुत कीमती वक्त है और हजरत के पास अब वक्त है नहीं। 12 बज चुके भैया, आप ये ना करो, ना बन पाए रहने दो। बुलाया क्या है क्या ये? अरे बच इधर 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 उठाओ, इधर रखो। ताबिश रेहान का काम, उनको शौक, हमको इधर कर रहा हूँ। सामने ही छेड़ोगे तो हम क्या करें? इधर इधर और करवा। हाँ, सुकून के कायल नहीं है वो, तो लोग जबरदस्ती करते हैं, चाहिए था मानो पर मानते हैं, क्या करें। तो दोस्तों अर्ज कर रहा था, मैं शुरू में एक चीज अर्ज कर देता हूँ जो हमारे लायक है, जिस पर हम अमल कर सकते हैं। एक तो अल्लाह ने आंखें दी हैं, अल्लाह ने कान दिए हैं और अल्लाह ने जबान दी है। सारा जितना वजूद है, आज़ा जवारे सब अल्लाह ने दी। किसने दिया?